Good morning students, welcome again to our new class. We are studying our second chapter, sexual reproduction in flowering plant. In this chapter we studied earlier the structure of flower and then stamen, microsporangium and pollen grain, and then after pistil or carpel, megasporangium and embryo sac, and also microsporogenesis and megasporogenesis. So sexual reproduction is divided into three parts. First, fertilization. Second, or we can say main process is fertilization. So first is pre-fertilization, second fertilization, and third post-fertilization. So we are studying here pre-fertilization. Pre-fertilization can be divided into two parts. First of all, gamete formation and then gamete transfer. So till now we studied about gamete formation. With the help of microsporogenesis, the male gamete pollen grains are formed in the male reproductive part, androcium, and the female gamete embryo sac is produced in the female reproductive part, gynoecium. So now the second topic of pre-fertilization. First is gamete formation, ये अपन ने पढ़ लिया, and second is gamete transfer. So the process of gamete transfer is called pollination. Clear? What is pollination? Means the pollen grain. Pollen grain are male gamete which is produced in the anther. So transfer of pollen grain from anther to the stigma is called pollination. Flowering plants have involved an amazing array of adaptation to achieve pollination. They make use external agent or achieve external agents to achieve pollination. What is pollination? Simple words में क्या हो गया pollination? आप लोगों को पता है, अपन ने ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी स्टेमन की. स्टेमन में ये स्ट्रक्चर क्या है? एंथर है. और ये स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपन ने पिस्टल की. ठीक है. अब पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंथर में होता है, तो एंथर से इनका ट्रांसफर जो है वो स्टिग्मा तक होता है. ये क्या है? पोलिनेशन है. एक्चुअली में देखा जाए तो बोथ द गेमेट्स आर नॉन मोटाइल, बट they only male gametes are transferred to the female gamete. तो यहाँ मेल गेमेट का जो ट्रांसफर है, और मेल गेमेट क्या अपने को पता है पोलन ग्रेन है, और पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन जो है वो एंथर में होता है. तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड pollination. Now kinds of pollination, there are three kinds of pollination and two types of pollination. First of all, two type की अगर अपन बात करें तो एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन. अब इसी को अपन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं. सेल्फ पोलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑटोगेमी. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोगेमी, सेकंड गेटनोगेमी, and third is gynogamy. And it is also called cross pollination, gynogamy or cross pollination or cross fertilization. So starting from autogamy, पहले आप इसको डायग्रामेटिकली समझ लें. दिस इज अ प्लांट इन विच देर इज a flower, and in this flower both the sex organs are present, means androcium and gynoecium, or we can say pollen and pistil. So here is anther and here is stigma. From within a flower, transfer of pollen grain from anther to stigma is called autogamy, or we can say pollination is achieved within the same flower.
इज कॉल्ड ऑटोगेमी। यहां आप एग्जाम्पल देखिए, वायोला, वायोला ऑक्जेलिस एंड कोमेलिना। ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में 2 टाइप्स के फ्लावर होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं केसोगेमस एंड सेकेंड इज क्लिस्टोगेमस। मीन्स केसोगेमस आर द नॉर्मल फ्लावर इन विच, अब देखिए अपन ने फ्लावर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, तो फ्लावर की स्ट्रक्चर में अपन ने बात की थी, there are 2 essential parts, means androecium and gynoecium are the essential part of a flower, and calyx and corolla are the accessory part of a flower, and calyx and corolla are the protective nature। वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मान लीजिए आप क्या है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है, और ये क्या है, इनको कवर्ड किए हुए केलेक्स एंड कोरोला है। तो इस प्रकार के फ्लावर जिनमें ये केलेक्स एंड कोरोला सेपरेट नहीं होते हैं, डिफरेंशिएट नहीं होते, ये हमेशा क्लोज्ड ही रहते हैं, तो ये जो होगा अपना एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये क्या रहेगा? हमेशा कवर्ड रहेगा। तो उन फ्लावर्स को क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी। और केसोगेमस मीन्स ये जो केलेक्स एंड कोरोला है, ये क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। अपन कह सकते हैं पुष्प जो है वो खिल जाएगा। ठीक है, तो इनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होंगे? अनकवर्ड हो जाएंगे। तो उसको क्या कहेंगे? केसोगेमस मींस सेम टू द फ्लावर विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा। और क्लिस्टोगेमी द फ्लावर विच डू नॉट ओपन, एंथर एंड स्टिग्मा क्लोज टू ईच अदर। तो अब यहां क्या हुआ? ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, तो एक ये प्रोटेक्टिव लेयर है, उसके ऊपर दूसरा कोई पोलन ग्रेन आ ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? सेल्फ पोलिनेशन। सेकंड, गेटनोगेमी। अब गेटनोगेमी में क्या होगा कि यहां मान लीजिए एक प्लांट पे खूब सारे फ्लावर हैं, ठीक है, तो एक प्लांट पे जितने भी फ्लावर हैं, इनमें आपस में जो पोलिनेशन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? गेटनोगेमी। क्लियर? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सेम प्लांट पे जितने भी फ्लावर सिचुएटेड है, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड गेटनोगेमी। मीन्स इफ पोलिनेशन एजेंट इज प्रेजेंट देन इट इज क्रॉस पोलिनेशन। यहां कोई एजेंट बैठा होगा, वो दूसरे प्लेस पे इसको लेके जा सकता है। ठीक है, अभी बात करेंगे अपन एजेंट्स की भी। एंड थर्ड है जीनोगेमी और क्रॉस पोलिनेशन। व्हेनेवर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर, अलग अलग प्लांट के ऊपर जो फ्लावर सिचुएटेड है, उन फ्लावर में क्या होता है? पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है। मान लीजिए ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, तो ए प्लांट से बी प्लांट पे और बी प्लांट से ए प्लांट पे जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। अब व्हेनेवर सेल्फ पोलिनेशन occurs and whenever क्रॉस पोलिनेशन occurs, so we can look at difference। इसको अपन ये भी कह सकते हैं अडेप्टेशंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। मींस सेल्फ पोलिनेशन कब होगा और क्रॉस पोलिनेशन कब होगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अपन सेल्फ पोलिनेशन की, तो अपन ने जो गेटनोगेमी और ऑटोगेमी स्टडी की, उसके अकॉर्डिंग क्या हो गए? यहां क्या होना चाहिए? बाई सेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तभी क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन होगा। और मोनो sexual flower, if only single sex organ are present in a flower, then there is cross pollination। then mature at same time, sorry, different time। यहां क्या होगा? मैच्योर एट
सेम टाइम, यानी अपन ने बात की पोलिनेशन की। पोलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मींस स्टिग्मा क्या होगी? रिसेप्टिकल होगी, मेच्योर होगी, तभी वो क्या करेगी? पोलन ग्रेन को रिसिप्ट करेगी। अब यहां मान लीजिए मेच्योर एट सेम टाइम, एंथर डिहेंस होता है, एंथर डिहेंस से पोलन ग्रेन सेपरेट होंगे और एट दैट टाइम द स्टिग्मा इज मेच्योर टू रिसीव द पोलन ग्रेन, then the self pollination occur. But whenever both the sex organs are mature at a different time, means pollen grain mature पहले हो गए, ट्रांसफर हो गया उनका, स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिकल नहीं हुई, या स्टिग्मा पहले रिसेप्टिकल हो गई, तब तक सेम फ्लावर के पोलन ग्रेन मेच्योर नहीं हुए, तब तक वो क्या कर लेगी? दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन एक्सेप्ट कर लेगी। देन थर्ड, हीटेरो स्टाइल और हर्कोगेमी, होमो स्टाइल। whenever structural and we can say anatomical and morphological differentiated between anther and stigma, then cross pollination occur, and when style the length of style is equivalent to the anther, then self pollination is occur. And last, self sterility, यानी अगर पोलन ग्रेन सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा सेम फ्लावर के या सेम प्लांट के पोलन ग्रेन आ भी जाए, तब भी क्या होगा? इनमें कुछ जेनेटिक डिफरेंशिएशन के कारण पोलन जर्मिनेशन नहीं होता है। तो यहां थोड़ा सा देख लीजिए व्हाट इज पोलन जर्मिनेशन। तो अपन ने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन में अपन ने देखा था पोलन ग्रेन हैज टू प्रोटेक्टिव लेयर, outer exine and inner intine, and where exine is absent, that places are called germ pore. Then after pollination, pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. After pollination, these germ pore produce pollen tube. With the help of this pollen tube, two male nuclei and one vegetative nuclei is transferred to the female gametophyte. So whenever pollen germination is not occurs due to presence of some genetical resources or genetical factor, then it is called self sterility. Means जब उसी फ्लावर का पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे आ जाता है, तो वो क्या करता है? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं करता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं? सेल्फ स्टेरिलिटी। तो दीज आर द अडेप्टेशंस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन, एंड आल्सो द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पोलिनेशन। नाउ द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, these are the agents of pollination. Agents mean the factor which do this process. कोई भी बायोटिक फैक्टर हो या एबायोटिक फैक्टर हो, जिस एक्टिविटी या जिस फैक्टर के द्वारा पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा तक रीच होते हैं, that are called agents. So agents of pollination are two types, abiotic and biotic. Whenever the living organism can do the pollination, then it is called biotic, and whenever without living organism the pollination is occur, then it is called abiotic agents. Abiotic are also divided in two parts, wind and water. The scientific name of wind pollination is called एनिमोफिली। ये याद रखना है आपको, सीधा सीधा साइंटिफिक नेम पे 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। वाटर पोलिनेशन हाइड्रोफिली। बायोटिक में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करते हैं? पोलिनेशन करते हैं। जैसे बी भी करती है, बर्टल भी करते हैं, बटरफ्लाई भी करती है। यहां पर ने 3 कॉमन नेम लिए। इंसेक्ट के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। और बर्ड्स के द्वारा ऑर्निथोफिली, और बैट्स के द्वारा कीरोप्टेरोफिली। नॉर्मली
यही अपने क्या है पोलिनेशन के एजेंट है। अब अगर बात करें कि विंड पोलिनेशन, तो विंड पोलिनेशन जो है वो क्या होता है, एकदम कॉमन होता है अमंगस्ट द एबायोटिक पोलिनेशन। एबायोटिक पोलिनेशन में विंड पोलिनेशन जो है वो क्या है, कॉमन है। अब विंड पोलिनेशन के लिए क्या एडेप्टेशन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट्स। एयर के साथ साथ फ्लो होने चाहिए, तो वो लाइट होंगे तब फ्लो होंगे। अब अपन ने आप लोगों को याद होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में अपन ने देखा था कि जो एमएमसी है, मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल कैन प्रोड्यूस पोलन टेट्राड। अब वहां पे न्यूमेरियस नंबर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि विंड के द्वारा जब इनका फ्लो होता है तो हो सकता है ये स्टिग्मा तक न पहुंचे। सो दे आर मेड इन वेरियस नंबर। तो पहली बात तो क्या होगी, दे आर लाइट, दूसरी दे आर नॉन स्टिकी एंड दे आर सो मच प्रोड्यूस सो दे कैन ट्रांसपोर्टेड इन द विंड करंट्स। दे ऑफन पोसेस वेल एक्सपोज स्टेमन। वेल एक्सपोज्ड क्या होना चाहिए, स्टेमन होना चाहिए, जिससे वो इजीली क्या हो जाए, डिस्पर्स्ड हो जाए और विंड करंट के साथ वो स्टिग्मा तक पहुंच जाए और लार्ज। और इसके अलावा उनमें कुछ फिदरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे हेयर वगैरह उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं, या जो अपने बर्ड्स में जो फीदर वगैरह होते हैं इस टाइप की स्ट्रक्चर भी उनमें प्रेजेंट हो सकती है। एंड सेकेंड थिंग, स्टिग्मा जो है वो स्टिग्मा भी इस टाइप की होनी चाहिए कि वो उनको रिसेप्ट कर सके। ठीक है, तो अगर अपन एग्जांपल देखें कॉर्न का, तो कॉर्न में जो आप फिदरी स्ट्रक्चर देखते हैं वो फिदरी स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज स्टिग्मा। द फिदरी स्टिग्मा टू इजी टू ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन। विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैव ऑफन सिंगल ओव्यूल। और ये तो अपन ने देखा ही था कि एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल के द्वारा क्या होता है, सिंगल ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। और विंड पोलिनेशन में स्पेशली ये चीज होती है। और विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। ठीक है, दूसरी बात करें अपन वाटर पोलिनेशन की, तो वाटर पोलिनेशन में क्या होता है कि वाटर जो क्या करता है, वो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम स्टिग्मा टू फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इनके दो अपने पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, उसके बारे में भी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन पोलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। ठीक है, तो इसका डिस्कशन अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इतना ही कि जो वाटर पोलिनेटेड पोलन ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर एक कोट होता है, और वो कोट क्या करता है, इनको प्रोटेक्शन देता है वाटर के अंदर, ताकि वो पोलन ग्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। यहां आप एक क्वेश्चन और रिमेंबर कर लीजिए कि जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट है, इनका डिस्पर्सल जो है वो पूरे यूनिवर्स में या पूरे वर्ल्ड में नहीं हो पाया। ये एक लिमिटेड एरिया तक ही रह गए। व्हाई? बिकॉज दे नीड वाटर टू फर्टिलाइज and water is not present in every place, so they can found in a limited area. Okay, थर्ड बायोटिक। तो बायोटिक में जो भी एजेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करेगा, और उसके बेस पे ही हम उस पोलिनेशन को क्या कह देंगे। अगर बर्ड कर रहा है तो बर्ड पोलिनेशन, अगर ह्यूमन कर रहा है तो ह्यूमन पोलिनेशन, और वी कैन से आर्टिफिशियल पोलिनेशन। मेंडल ने जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो वो क्या थे, आर्टिफिशियल पोलिनेशन के एग्जाम्पल थे। ठीक है, ब्रश के ऊपर लेके पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पे रख दिया, वो भी अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में अपन और ज्यादा विस्तार पूर्वक पोलिनेशन का डिस्कशन करेंगे। टिल देन, थैंक यू।